Hi guys, so welcome to another me versus Crocs India video. So if you guys have been following this case, then you know that I've already made like 3 videos on this case. First one first one almost a year ago in 2025, and I've made another 2 videos related to this case. And if you are like watching this video for the first time, and if you're wondering why I'm like fighting a case against Crocs India, then let me tell you guys briefly. So back in October 2024, I have ordered a pair of footwear from Crocs, and due to size issue, I have returned the product. But despite of following up multiple times for the refund on all of the social media platforms, be it Instagram, Twitter, mail, email, and lots of things, उसके बाद भी I did not get the refund until I took this matter to the court, and जैसे ही court में ले गया और file कर दिया था ये matter, only then I got the refund, and it took almost 2 years to get a simple refund. So ये case अभी सुनने में जितना easy लग रहा है, it is not that. I have to go through a lot, and also in between they have tried to like manipulate me. वो सब का proof I have in this file. Also, if you're new here, then this is to let you know that I am doing this case all by my own, and I have not hired any lawyer, nor I'm a law student. Consumer का case को आप खुद से भी जाके fight कर सकते हो. So in my last video also people were commenting कि आप बिना lawyer कैसे जाएगा, तो आपके साथ ऐसे होगा ही, and lawyer लेना ही चाहिए. But consumer जो ये consumer related वाला issues होता है, आप उसमें खुद से भी जाके fight कर सकते हो. So I've chosen to represent my own case. And last time जो first hearing था, that was like a very intimidating experience for me. I cried in front of the judges because they were very much strict, and I was not ready for that. But this time I'm mentally prepared to face the judges. And last time का जो first hearing था, उसमें मतलब respondent party जो कि respondent/opponent party Crocs India, वहाँ से कोई representative नहीं आया था. It was because जो first hearing में होता है, जो complain करता है वही बस अपना complaint को बताता है, and only then the judges will decide कि इसका case genuine लग रहा है कि नहीं है. So very fortunately in my case, the judges accepted to continue this case. And now that I've already got the refund, but not to forget, it was only after filing the case. So I am continuing this case only to fight for the compensation for the mental harassment, for the time that it has taken, for all the money that I've spent on paperwork. So now while we are on the way to the court, I'll show you guys quickly what my file consists of. And also I'm wearing this kurti क्योंकि थोड़ा वो देखना है, मतलब formal type का looks. In like my first hearing, it was winter, so I wore blazer and all, but अभी दिल्ली में बहुत गर्म हो गया, so you can't wear blazer. And yeah, this is how the file looks like. इसका 3 कॉपी होता है, एक जिनको केस कर रहा है उसके पास जाता है, and one with the court and another one with me. So I'll show you guys quickly. सबसे पहले it is the index, like जैसे किताब में भी होता है, index is given ताकि हम भी पेज नंबर को देख के आराम से टर्न ओवर करके जो भी बोलेगा उसको देखा जाए. एंड इसके अंदर में बहुत ज़्यादा पेजेस है. तो ये फर्स्ट वाला में तो इट्स पेज नंबर 1. दिस इज़ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स, और so in the first page we have the list of the event, कब कंप्लेन किया था, कब उसको फॉलो अप किया था, वो सब का प्रूफ है with the date. एंड उसके बाद यहाँ पे फिर आई एम टेलिंग द जजेस की एक्चुअली में केस किया है बोल के. तो ऐसे होके फिर यहाँ पे है एफिडेविट, एक कोर्ट के तरफ से एफिडेविट लगता है. एंड देन यहाँ पे फिर मैंने प्रोवाइड किया है Annexure C1 में, which means it is like proof from my side. तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि जो इनवॉइस है उसको दिखाया, और यहाँ पे ये भी दिखाया कि जो क्रॉक्स है वो उनका वो हो गया था, रिफ़ंड नहीं करके भी रिफंडेड वाला जो उनका पोर्टल में दिखा रहा था, ये उसको दिखा रहा था, बिकॉज इट वाज आल्सो मिसलीडिंग फ्रॉम देयर एंड. एंड यहाँ पे मैंने उनको, ये है Annexure C3. Here I have like written a warning formal letter to the Crocs. उसका प्रूफ है, मतलब before taking this matter to the court, I wanted to settle it outside of court. That is why I've sent this letter to them. एंड उसके बाद ये लेटर भेजा है बोल के उसका प्रूफ है, वो मतलब इंडिया पोस्ट से. एंड देन वी हैव And then we have the transcript of our call recording, जहाँ पे agent was accepting कि
हाँ उन्होंने अभी तक रिफ़ंड नहीं किया है, बट फिर भी उनका वेबसाइट में रिफ़ंड दिखाया है और ये रिफ़ंड बहुत टाइम ले रहा है बोल के वो जो बोला था उसका रिकॉर्डिंग है। एंड माई ईमेल का फॉलो अप्स मैंने उनको बहुत ज़्यादा ईमेल लिखा है उसको, ये मैटर को केस में ये मैटर को कोर्ट में नहीं ले जाने पहले, ये पूरा ईमेल का ही वो है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनको टेक्स्ट किया है, ये उसका प्रूफ है। एंड मैंने उनको ट्विटर में भी फॉलो अप किया है, ये उसका प्रूफ है। और बहुत ट्विटर का ही है। एंड देन हेयर्स माई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर उनका तरफ से फिर ये मेल आया था, वो सब है। बहुत लंबा कहानी है, यू गाइस हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस टू नो। ये सबको मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले में, ये सबको मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले में। एंड उसके बाद भी यू नो व्हाट लाइक दे टोल्ड मी कि जब ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में ले गया था, दे टोल्ड मी कि द अमाउंट वाज रिफंडेड एंड आई नीड टू शो माय बैंक स्टेटमेंट। और ऐसे बोलने के बाद आई वाज लाइक कि इफ़ यू हैव रिफंडेड दैट अमाउंट देन यू हैव टू शेयर मी द ट्रांजेक्शन आईडी, ये सब शेयर करने के लिए कहा था। बट उन्होंने शेयर नहीं कर पाया और उसके बाद रिफ़ंड कर दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत तरीके से मिसलीड किया है। एंड इन दिस केस आई हैव ऑलरेडी स्पेंड लॉट्स ऑफ माई टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो अभी आई एम फाइटिंग नॉट फॉर द रिफंड बट फॉर द कंपेंसेशन फॉर द मेंटल हेरेसमेंट एंड फॉर माई टाइम। सो विश मी लक फॉर द सेकेंड हियरिंग। सो आई जस्ट केम आउट ऑफ द कोर्ट और बस एक बहुत सिंपल सा था कि वो लोग से कोई आया नहीं है, तो उसके वजह से जो जज मैम था शी वॉज वेरी नाइस, वो कंफर्टेबल फील कराया। एंड उन्होंने कहा कि यू नो मतलब एक ही बार में वर्डिक्ट नहीं दे सकते, उनको थोड़ा टाइम देना होता है। वो अभी ये हियरिंग में उनको आना ज़रूरत था पर वो आया नहीं है, तो उनको अगस्त 12 तक टाइम है। और अगर अगस्त 12 तक भी क्रॉक्स की तरफ से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है देन दे कैन गिव देयर फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस केस। तो बस इतना ही है, सिंपल सा। आई वाज नॉट रियली नर्वस टुडे यू नो, क्योंकि माई पार्टनर वाज देयर विथ मी and he was nervous for me, but I was confident because I know कि I am on the truth का side, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ आज। नहीं तो लास्ट टाइम जब आफ्टर फर्स्ट हियरिंग ये गाड़ी लोग का पीछे में ही बैठने के बाद में आई वॉज क्राइंग ए लॉट पर ये बार बहुत अच्छा गया है, मैम वॉज नाइस। लास्ट टाइम ये मैम नहीं था, दूसरा मैम था एंड इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि मैं बाहर आके ठीक से रोई हूँ। बट दिस टाइम इट वॉज ऑल गुड एंड आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड अबाउट माई आउटफिट, क्योंकि ये थोड़ा स्लीवलेस है और कोर्ट में थोड़ा ड्रेस कोड में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। बट आउटफिट को भी कुछ नहीं बोला है। सो नाउ लेट्स वेट फॉर अगस्त 12। और ये अगस्त 12 होने के लिए तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचा है। और कोर्ट का काम ऐसे ही होता है, बहुत ज़रा लेंदी होता है प्रोसेस वगैरह, बट लास्ट में जिनको मिलना है जस्टिस वो मिल ही जाएगा। सो आई रियली वांट टू टीच दिस कंपनी ए लेसन एंड आप सबको भी करना चाहिए अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होगा तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Yeah, that was my third hearing and I'll keep you guys updated on this. Thank you so much for watching, and lastly thank you so much for all the support that I got in my previous video, and also because I have recently started my new business which is my Airbnb in Delhi. So I got some comments saying ki you got compensated, you first did a false case against Crocs and then you got compensation and you started that business from Crocs money, which is very much false. Crocs still owe me money because बहुत ज़्यादा रुपया चला गया डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस में। तो वो ये नहीं जानने पहले कुछ ऐसे बोलना सही नहीं। ऑल्सो आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस सो दैट आप भी जान सकिए अपना कंज्यूमर राइट्स को। So yeah, that's it for this video. Make sure that you like, comment and subscribe to my channel and see you next on August 12th.